दोस्तों नमस्कार। The today's topic that we're going to discuss is the FCRA amendment which is being brought by the government. So let's understand this particular law. What is the context? What has been the history? And what is the impact of this particular law in our life? That is the objective of this today's video. Now let's go back to 1976 when Indira Ji was the Prime Minister of India and she had put emergency in India. So at that point in time, this law was brought in India for the first time. Before that, before 1976, there was no FCRA in India. What is FCRA? Foreign Contribution Regulation Act. As the meaning, as the name is suggesting, it is about regulating the contributions, the money, and the funds that are coming into India from other countries, from the foreign countries. So this act is actually regulating the foreign money that is coming into India for various activities in India. So this was first brought in 1976 by Indira Ji. What was the reason? Because during that point in time, she had applied emergency in India, and a lot of people were opposing it. A lot of people were put into jail, and that is when she was maybe assuming and thinking that a foreign funded campaign could, topple her government or could stop the government, could stop the emergency. So for that reason, she didn't want to have any foreign money coming into India, and that's why this law was made by her. Now, coming back to today's situation. Now, you might have seen a lot of villages wherein only two or three minority families are there, but then they have got big, big mosques, right? How is that happening? How is the money coming? That is where the FCRA is coming in. Now, let's talk about the cultural ministry budget in India. You know what is the cultural budget of India? 3,000 crore. And you know how much amount of money is coming into India through the NGOs every year from the foreign countries? 20,000 crore. Yes, you heard it right. The money that is coming into India from the foreign countries via the NGOs is almost 7 times of what the cultural ministry budget is there in India. राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे कि ये पैसा कितना बड़ा है जो बाहर से आ रहा है, तो इसको रेगुलेट करना इज वेरी रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग बैक टू द लॉ विच इज एफसीआरए. तो एफसीआरए क्या करता है कि जो फॉरेन से पैसा आ रहा है, ये जो एनजीओज को, अलग अलग ट्रस्ट को ये जो पैसा आ रहा है, सो द लॉ इज एक्चुअली ट्राइंग टू ensure that this money is being utilized for the purpose for which it was sent. करेक्ट. तो एफसीआरए में कुछ ऐसे प्रोविजंस है. फॉर एग्जांपल, अगर समझो बाहर से 100 करोड़ आया इसी एनजीओ को, तो दे कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ दैट मनी फॉर देयर ओवरहेड्स, मतलब सैलरीज वगैरह जो करनी है उनको. फॉर दैट 20% कैन बी यूटिलाइज एंड 80% ऑफ द मनी हैज टू गो ऑन द ग्राउंड फॉर वॉट एवर सोशल एक्टिविटीज दे आर डूइंग. नाउ जस्ट लेट मी गिव यू सम फिगर्स कि ये जो 20,000 करोड़ आ रहा है वो कौन कौन से सेक्टर में जा रहा है. तो एजुकेशन में अबाउट 30 to 35% पैसा जा रहा है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, आउट ऑफ 20,000 करोड़. हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, इसमें 25 to 30% पैसा जा रहा है. सोशल वेलफेयर, वी डोंट नो व्हाट सोशल वेलफेयर माइट स्टैंड, बट देन एनीथिंग विच इज सोशल फॉर पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, 20 to 25%. रूरल एंड कम्युनिटी 10 to 15%, एंड कल्चरल एंड अदर थिंग्स इज अराउंड 5 to 10%. तो ये जो बाहर से 20,000 करोड़ आया है इज गोइंग इनटू दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज. अभी हम देखते हैं, राइट, देयर आर सो मेनी मिशनरी स्कूल्स दैट आर रनिंग अक्रॉस द कंट्री. उसमें फीस बाकी इंस्टीट्यूशन से काफी कम है, राइट. व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अराउंड 7 to 8,000 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन. हेल्थ केयर में भी ऐसा ही है. देयर कुड बी सर्टन हॉस्पिटल्स विच आर चैरिटी एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट लोकल लो कॉस्ट, तो वहां पे ये पैसा जाना चाहिए जो बाहर से आ रहा है, राइट. अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी इसमें देखिए कि हम अगर इंडिया का ज्योग्राफी देखते हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है 25 to 30% दिल्ली में. अभी आप इमेजिन कीजिए, दिल्ली इज द मोस्ट अर्बन सिटी दैट वी हैव इन इंडिया. इट इज कंप्लीटली अर्बन, राइट. और वहां पे ये पैसा जा रहा है 25 to 30%. अभी दिल्ली में आपको पता है कि देर आर सो मेनी डिसीजन मेकिंग लॉबीज, राइट. मतलब जो लॉबिंग होता है वो सारा दिल्ली में होता है कि आपको कोई डिसीजन करवाना है, आपको कोई आपके फेवर में करवानी है चीजें, तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉबिंग होता है. तो कोइंसिडेंटली
ये जो पैसा बाहर से आ रहा है, अराउंड 30% ऑफ दैट मनी इज बीइंग स्पेंट इन दिल्ली, राइट। आप देखते हो ना कि सारे प्रोटेस्ट दिल्ली में होते हैं। आम आदमी पार्टी जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी दिल्ली में ही स्टार्ट होती है। शाहीन बाग अभी जो चल रहा है सीजेपी का प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें दिल्ली में ही है, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस है, राइट, तो अपना कैपिटल है। तो वहां पे इतना सारा पैसा जा रहा है। अभी आप गेस करो कि इसके बाद का पैसा कौन से स्टेट में जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ द मनी इज गोइंग इनटू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अभी आपको मालूम है कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर द स्टेट्स वेयर मैक्सिमम कन्वर्जेंस हैव हैपेंड। अगर वहां का डेमोग्राफी आप देखोगे तो वहां के डेमोग्राफी में बहुत चेंजेस हुए हैं और मैक्सिमम कन्वर्जन इन ही स्टेट में हुआ है। तो ये कोइंसिडेंट हो रहा है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है ऐसे स्टेट्स में जा रहा है जहां पे ऑलरेडी काफी ज्यादा कन्वर्जन वगैरह सारी चीजें चल रही है, राइट। और तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र और कर्नाटक का। तो महाराष्ट्र का पालघर वगैरह डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम है, लास्ट टाइम जब साधुओं का लिंचिंग हुआ था वहां पे, तो वी नो दैट देयर इज लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन इन कन्वर्जन इन दैट एरिया। तो वैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ऐसे काफी एरियाज है जहाँ पे ये सब पैसा जा रहा है। तो अभी हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स की, कोई किसी को हेल्प नहीं करता, राइट, कोई किसी के लिए नहीं है। आज हम देखेंगे यूरोप यूएस में भी काफी गरीबी है, मतलब वहां पे भी लोग रास्ते पे बैठ रहे हैं, रास्ते पे सो रहे हैं। यू माइट हैव सीन दोस वीडियोस, राइट, wherein there are homeless people, they are staying and sleeping and living on the road, and that is the case with a lot of European countries, even in US that is happening। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो उन लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है इंडिया में 20,000 करोड़ खर्चा करने की? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। 20,000, बिकॉज 20,000 करोड़ इज अ वेरी बिग मनी, राइट। तो ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में वो लोग डाल रहे हैं और उनको उनके पैसे का कोई काम नहीं है। दैट इज नॉट द थिंग। हमको मालूम है कि वर्ल्ड में कोई किसी के लिए फ्री में कोई चीजें नहीं करता है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग रिटर्न आउट ऑफ इट। तो ये रिटर्न क्या है इंडिया में? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। सेकेंड इज कि अभी आप देखेंगे तो इंडिया में क्या है कि लास्ट 200 साल अब द ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड अस, और उसके पहले मुगलों का काफी एरियाज में रूल था फॉर सम 800 ईयर्स, राइट। तो क्या हो गया ना कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक्स है इट इज कंप्लीटली मिक्स्ड। वी हैव मिक्स ऑफ रिलीजन्स, राइट। तो अभी हिंदूज का जो परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में, जितना हिंदूज है उसका 95% इंडिया में ही है अप्रोक्सीमेटली। तो इंडिया में रिलीजियस डेमोग्राफिक्स चेंज होना चाहिए, इंडिया में रिलीजियस कन्वर्जेंस होनी चाहिए, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि इंडिया इज द लास्ट कंट्री फॉर हिंदूज, राइट। तो ये वाला अगर चेंज वो कर लेते हैं, एटलीस्ट 10-15% भी चेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड डेमोग्राफिक्स, तो इंडिया पे उनको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। See, every other country wants to control the other countries. Now today USA wants to control India, USA wants to control maybe China, Europe also wants to control countries such as India, Bangladesh and all of that. So how will you control a country when you have people inside that country who are sympathizing with you, right? अगर USA को sympathize करने वाले लोग इंडिया में ज्यादा होंगे तो it is going to be easier for USA to control India, right? So for all these political reasons, the conversion is happening all across the world and is also happening in India. उसके लिए a lot of money is also coming in. अभी now you will ask that ये government पूरा बंद क्यों नहीं कर सकती, right? You can stop foreign contributions. अभी क्या है कि you also need to have a diplomatic relationship with countries such as USA, UK and all of that in Europe. तो हम ऐसे पूरा बंद कर देंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ रिपरकशंस एंड देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स दैट वी विल हैव टू हैंडल इन द रिलेशनशिप दैट द कंट्रीज हैव। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट। इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो मेन है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट की चर्चा हो रही है, कि इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी जो एनजीओ है जिसने एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लिया है, राइट, तो वो रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल के लिए, उसका वैलिडिटी 5 इयर्स होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया तो इट इज ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। दैट इज अ न्यू रूल दैट दे हैव गॉटन। अभी कैंसिलेशन के बाद क्या होगा? अभी देखो, कैंसिलेशन समझो एफसीआरए का लाइसेंस हो गया किसी ट्रस्ट का, किसी एनजीओ का, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाया है इंडिया में, राइट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई स्कूल बनाया होगा, कोई हॉस्पिटल बनाया होगा, कोई चर्च बनाया होगा, कोई मॉस्क बनाया होगा, वो पैसे से जो पैसा आ रहा था, तो वो प्रॉपर्टी का क्या होगा?
क्योंकि वो ट्रस्ट का तो एफसीआरए का लाइसेंस चला गया, मे बी फॉर सम रीजंस दे हैव नॉट फॉलोड सर्टेन रूल्स और सम इलीगल एक्टिविटीज हैव बीन डन, तो उनका एफसीआरए का लाइसेंस चला गया। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बना रखी है, उन्होंने दे माइट हैव टेकन सम लैंड एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो लैंड है, ये लैंड अभी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी गवर्नमेंट बनाएगी, और ये जो लैंड है या फिर प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रस्ट और एनजीओज की, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें प्रपोज किया है। अभी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है फॉर दिस एनजीओज एंड फॉर दिस ट्रस्ट, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमारा एफसीआरए का लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया फॉर सम इलीगल एक्टिविटीज दे इफ दे डू, देन देयर प्रॉपर्टीज विल गो बैक टू द गवर्नमेंट। अगर भी आप देखोगे दोस्तों कि ये जो लोग 20,000 करोड़ रुपए इंडिया में भेज रहे हैं, ये लोग इंडिया के लिए ही भेज रहे हैं, है ना। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, राइट, कि वी आर गिविंग दिस मनी टू द एनजीओज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो प्रॉपर्टीज वो पैसे से बनाएंगे, अगर वो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के पास चली जाती है तो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द सोसाइटी, गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द पीपल, बट उनको वो गवर्नमेंट को देना नहीं है, बिकॉज दे वांट टू हैव देयर domination, and they want to have their say, they want to have their power. So for that there is a lot of resistance that is coming from these NGOs and from this trust. You might have seen that the state secretary of USA also recently visited Kolkata, and he visited the church and similar institutions there. तो वो लोग वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप जो एफसीआरए में अमेंडमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें हमारा ध्यान है, एंड वी आर नॉट लाइकिंग इट, and we are trying to tell you that we are not liking it by various means, right? तो ये जो एफसीआरए का अमेंडमेंट है, अभी बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, इसमें एफसीआरए का जो अमेंडमेंट है, जो ये सेशन में आने वाला है, जो अभी मानसून सेशन चल रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, राइट। मतलब टू ब्लैकमेल द गवर्नमेंट और टू टू थ्रेटन द गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि एफसीआरए में क्या है, now you might have seen a lot of videos, right, at the CJP protest. There are people sitting in Qatar who are sending thousands of samosas and hundreds of burgers to the people who are at CJP protest. Now ये सब क्या है, right? So there are a lot of people who are outside India who want to have influence on things that are happening in India. उनको जो इंडिया में चीजें हो रही है ना, उसके ऊपर कंट्रोल करना है, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए पैसा इज द बिगेस्ट मीडियम, राइट। तो एफसीआरए इज डायरेक्टली हिटिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि जो पैसा आप भेज रहे हो उसका अकाउंटेबिलिटी होगा। गवर्नमेंट में और एक प्रोविजन है उसके अंदर कि जो पैसा आया है दैट शुड बी स्पेंट विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब पैसा आज आया, आपने एक साल यूज नहीं किया और एक साल के बाद आप दूसरे चीजों के लिए वो पैसा यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। तो ऐसे सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने लेके आया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एफसीआरए में पैसा आ रहा है, that is going to be very tricky for NGOs and for trusts to manage, क्योंकि they'll have to be more accountable, and if they fail to be accountable, if they don't follow any particular law, all their properties could go back to the government. That is the bottom line. तो इसके कारण क्या है कि एफसीआरए के अगेंस्ट काफी रोष है in these NGOs and trusts, and all of that is playing into what the CJP protest is happening in Delhi. And as we have seen in the past, 30-35% of the FCRA amounts also going to Delhi. तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो hopefully you have understood what I've tried to tell about FCRA. I've tried to keep it very in a very simple language, although it's a very complicated law and there are a lot of details into it, but I've tried to keep it simple as much as possible. If you like it, please do share and like the video. Also remember to subscribe to the channel. I keep on bringing such stuff which is law related, which is related to the society, and which is related to our country. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.